आई एम रियली पेनफुल टू से दिस इन द हाउस कि हमारा बच्चा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर। टाइम माय कलीग आल्सो वांट्स टू स्पीक ऑन सर्टेन इश्यूज, but then I'll confine to one or two issues itself. Sir, in the supplementary demands, the government has placed a demand for a Department of Telecommunication. Around 337 crores have been placed for that. And I'm shocked to see that. No. I'm shocked to see, sir, for last 2 years, Sinha Sahab, kindly note it down. I'm watching it that MTNL is the baby of our own government. It's a public sector company. And the company was in profit till 2008, till the government took a decision. When they went for a licensing, they said the MTNL Mumbai and Delhi will not go for a tendering. Whichever will be the highest, the MTNL has to accept it. The two companies serving only 2 cities, metropolitan cities. They were compelled to take a loan of 11,000 crores to pay a license fee to the government. And because of that, the company which was in profit in 2008 to the tune of rupees 211 crores, the moment they took the loan, it went to a losses because the interest itself was around 1,000 crore per year. And therefore from that time onward till date, the company is in losses. Time and again, you won't believe, sir, in the motion of thanks speech, I said that the government must take care of the public sectors first. These are the public sectors which have served the country a lot. Maybe a bank, maybe Air India, maybe oil companies, maybe insurance company, same as the telecom sector, sir. Sir, what we need is that when it was done, financial support was required. I'll put 2-3 issues only. Financial support regarding minimum alternative tax amounting to rupees 497 crore, which is already approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs in 2014 as back-to-back reimbursement after payment by MTNL. It was agreed to. MTNL paid it on 30th September 2014 and was assured that the same amount will be repaid to them within a month's time. Today it is December 2015. The government has failed to pay the amount back to the MTNL, and therefore MTNL again has gone into losses. 4,497 crores are to be paid. MAT, minimum alternative tax. Because that is not being paid, the MTNL has been now burdened per month rupees 4 crore to pay the interest on that, sir. And there is no provision either in the budget, earlier budget, supplementary budget, 2015 budget, again in these supplementary demands. I am really painful to say this in the house कि हमारा बच्चा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, sir. Then second part is that, sir, regarding MTNL has surrendered 2.5 megahertz CDMA spectrum in 800 megahertz band both in Delhi and Mumbai, and it was auctioned by the government. Even after auctioning, the money was to be paid to MTNL, which has surrendered it. 458 crores were to be paid to the MTNL. It has not been paid till date. Company is in losses, and we go on blaming. If we ask something, we go on blaming. अरे MTNL तो बहुत लॉस में है. कंपनी सरकार की जिम्मेवारी है, वो सरकार नहीं करती. 458 करोड़ आज तक नहीं दिए, सर, उसके भी. फिर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट पेंशन का मुद्दा मान लिया. पेंशन देने के बाद में गवर्नमेंट को पेंशन देनी थी, गवर्नमेंट ने वर्बल ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर दे दी, आप अपने फंड से पैसे दे दो. अब 2014 की जो अपनी गैजेट नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी हमारी महानगर टेलीफोन निगम खुद पेंशन देती रही, उसके 105 करोड़ बन गए. और अगर सोचोगे 98 से तो आज तक करीबन 800 या 1000 करोड़ रुपए बन गए, आज तक वो भी पैसे नहीं दिए गए, सर. अब यह कंपनी इतनी लॉसेस में, हाल ही में हमारी BSNL ने 78.3, 68.2, 78.3 दे दिया DA. तो जब BSNL लॉसेस में करके MTNL के कर्मचारियों ने मांग की तो बोलने लगे कंपनी घाटे में. अब जब घाटा देखा तो सरकार की तरफ से इतने पैसे आने हैं. अब इसके बावजूद भी, सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया था, रिवाइवल ऑफ दी
कंपनी। आज आपने एक अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा सर, उसकी सराहना करूंगा, क्योंकि आपने ITI के पास ध्यान दिया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है, जगह है, लैंड है, मैन पावर है। वो ITI अगर रिवाइवर होगी तो जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्मार्ट इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, वी कैन मैन्युफैक्चर स्मार्ट इक्विपमेंट्स इन ITI सर, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट इक्विपमेंट्स, and ITI can be revival. I really thankful for that. But at the same time, please do not ignore at MTNL. MTNL को आज बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपकी तरफ से मांग करता हूं सर, आज तक MTNL ने टैक्सेस, लेवी, सारे टैक्सेस के डिविडेंड के जरिए सरकार को 35,000 करोड़ रुपए दिए होंगे आज तक, तिजोरी में भरे अपनी। और 35,000 करोड़ देने वाली कंपनी को आज उसकी मुसीबत है, तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। मेरे मित्र ने सुबह एक 0 ओवर यहाँ रखा था हिंदुस्तान एंटीवेट का, तो बोलने लगा दवा बनाने वाली कंपनी बीमार है, हमारे आनंद कुमार साहब उसके ऊपर ध्यान दे रहे उसकी बीमारी दूर करने के लिए। दवा बनाने वाली कंपनी बीमार है तो पब्लिक सेक्टर है सर, और पब्लिक सेक्टर का दो अच्छा काम होता है, एक तो सस्ते में अच्छा दवा देना, और दूसरी तरफ कर्मचारियों का भी क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज ऑल्सो देयर। So we have to look into this matter in both ways, sir. And therefore I request ये जो काम कर रहे, आपने दूसरी भी एक अच्छी बात की है, पेयजल और सैनिटेशन के बारे में 5,000 करोड़ के ऊपर ही भी ज्यादा पैसे आपने दिए, लेकिन उसमें सर हमने देखा तो सारे पैसे सैनिटेशन के लिए हैं, पेयजल के तरफ, राष्ट्रीय पेयजल की तरफ कुछ भी प्रावधान नहीं है। और आप खुद देखिए कि राष्ट्रीय पेयजल की जितनी भी योजनाएं हैं सिन्हा साहब, आज सारी योजनाएं बंद हैं, तो राष्ट्रीय पेयजल की तरफ भी प्रावधान करने की आवश्यकता है। एयर इंडिया आपने अच्छा काम किया था, 10,000 करोड़ रुपए देते, मैं आपकी तरफ से मांग करता हूं कि उसी तरह से MTNL को भी करीबन 10-15 हजार करोड़ का एक बार दीजिए, देखो कंपनी रिवाइव होगी। जो ITI के लिए किया वही MTNL के करिए, वो मेरी आपसे प्रार्थना है। और एक प्रार्थना करता हूं कि ड्राउट की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। कुछ आपने उस दिन कहा कि प्रस्ताव नहीं आए सरकार की तरफ से, लेकिन आज महाराष्ट्र में वो पूरे आधा, मतलब देश का आधा हिस्सा जो डाउट में है, थोड़ा अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है। बाकी सारे मुद्दों पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मित्र बोलना चाहता है, इसके लिए मैं यहीं खत्म करता हूं। फिर प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, अपने बच्चों के पास, उसकी सेहत के पास ध्यान दीजिए, MTNL को और BSNL को सशक्त कीजिए। धन्यवाद सभा।